have a winner. The lady who walked the last on a walker. Her mother is the true winner. That lady is the true winner. I mean, I don't know about the rest, but my winner is very clear. Thank you. यार आपने तो बिल्कुल लास्ट में साक्षी कर दिया, क्या बात है. Oh Jazz, we so delighted. Now, oh Jazz, you've been in this wondrous industry for decades together, and of course with the amazing experience that you have with all our beauty queens, right from Aishwarya Rai to Deepika Padukone. How does it feel with this lovely association with India Brainy Beauty? Hi everyone, first of all, fantastic seeing such a good crowd, and I think it's really nice to see Archana come. It's such a fantastic concept. I'm sure you agree with me, Simran, because nobody's really done something like this. Because according to the Indian community, beauty is, I think their definition of beauty is really beyond, and that's ridiculous. Till date, we're living in the 21st century, and still, जब सासू माँ बहू ढूंढने जाती तो उनको गोरी बहू ही चाहिए, भले उनका बेटा काला गधा क्यों नहीं दिखे. So we need to stop that, this kind of shaming and blaming of womenhood. I think it's high time we embrace our skin color, our beauty, and start accepting, because I think अंदर से जो है, it has to be beautiful from inside and outside. Because how long are we going to look beautiful for, right? So I think this is fantastic, Archana and Rabia, for even doing something like this. And I think so many women who have been there, it takes a lot of guts to be up there and to embrace this. So I think it's a big salute, Archana. I love you. Thank you, and I'm just going to have a word. We all dream of being in the designer collections, and one of them is Salim Asghar. Wow, we all dream to, sometime, someday, try sapne mein hi sahi. How are you feeling being here with us today? I'm here to escort my esteemed jury on the dais. I'm just going to ask you in short, just for a different photo op. So how are you feeling, Salim, being associated with India Brainy Beauty? Thank you, Simran. I think it's a wonderful concept, and I'm totally delighted to be here and seeing these bevy of beauties walk down the ramp and, finally understand that beauty is just not, a physical thing. It's much, much more than that. As Ojit just said, we need not to discriminate, not to body shame, nothing of that sort. Beauty comes from within, and, that we have started appreciating that and looking at that as a mark of beauty. I think we've all gone really forward. Thank you. Thank you so much. And ladies and gentlemen, I've already mentioned about the lovely lady who's here with us, Anusha. We're going to talk to our esteemed jury right on the dais. I'm here to escort all of you to the dais. We'd like to also felicitate you towards the beginning. Ladies and gentlemen, maybe all once again, please give them a loud. मैम आप जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई होता है. अपना नाम बताएं और आज ये जीत आपके लिए कितना मायने रखती है. माय नेम इज़ रीना बिरजे एंड ये बहुत बहुत मायने रखता है क्योंकि दिस इज़ अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी एंड आई एम राइट नाउ फीलिंग 10 feet taller. So I'm on cloud 9 right now, and all thanks to it's only gratitude that I can express to God, my husband Joy, my parents, and most importantly to Archana ma'am for giving this opportunity. Thank you. इस तरह के कंपटीशन, इस तरह का जो पेजेंट हुआ है जहाँ पे एज, हाइट, कलर कोई मायने नहीं रखता था, तो इस पेजेंट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, ये बहुत ब्यूटीफुल है. इट इज़ टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट and it's beautiful. I got to learn a lot. It benefited me so much, and this is just the beginning, and I'm going to take this further. I have my institute, so I'm gonna utilize this where my future students, the future generation, they get the maximum out of it. Thank you. Thank you. सबसे पहले आपको मुबारक हो जीत के लिए. Thank you. और ये जीत का जो सपना आज पूरा हो रहा है, तो अपने बारे में अपना नाम बताएं, किस शहर से हैं और ये जीत आपके लिए कितने मायने रखती है? मेरा नाम हिमानी है, मैं मुंबई से ही हूँ और ये जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी बिकॉज़ ये ड्रीम मेरी मम्मा का था, मेरा नहीं था. मुझे बचपन से मॉडल बनना था और आज ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप है. और यहाँ पे आने के बाद इनको कोई हाइट, एज कुछ नहीं चाहिए. इनको बस ये चाहिए कि आपकी अंदर की सुंदरता बाहर आए. दैट्स इट. सीज़न 3 में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए. थैंक यू. ब्रेनी ब्यूटी में तो अपना नाम बताएं और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस ट्रॉफ़ी को पकड़ के और स्टैश और क्राउन के साथ? मेरा नाम पूर्वी गड़ा है और
क्या फीलिंग्स बताऊँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई वर्ड में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पा सकती हूँ. इट्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम फीलिंग ऑन द 9th cloud right now, holding this crown on my head and holding this trophy in my hand. It's like an immense honor that I am here right now. फर्स्ट रनर अप रही, तो अपने बारे में बताइए और ये जीत आपको कितना, आपको क्या फील हो रहा है जीतने के बाद? Well, my name is Devangana Chauhan and I'm from Dehradun, Uttarakhand. I feel really great because for the first ever time मैंने रैम्प वॉक किया था अपनी लाइफ में. आई एम अ रेडियो जॉकी बाय प्रोफेशन, तो मैंने कभी सोचा नहीं था दैट आई विल एवर बी द फेस ऑन द स्टेज. आई हैव ऑलवेज बीन इनटू होस्टिंग, बट ये मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया. एंड स्पेशली इंडिया ब्रेनी ब्यूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई एज, हाइट, वेट, ये कुछ भी मैटर नहीं करता. सो इसी चीज़ ने मुझे बहुत अपील किया था बिकॉज कभी भी हमारे दिल में हमेशा एक इच्छा होती है कि टू बी ऑन द रैम्प, टू बी द क्वीन एंड द दीवा. एंड इन ट्रेनिंग सेशंस ने बहुत हेल्प आउट किया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई शुड टेक दिस अहेड. इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. आई रियली फील बेटर. अब आपने बोला कि आप जॉकी हैं रेडियो पे, तो अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? अब आपका इंट्रोडक्शन आप एज अ जॉकी आप कैसे बोलेंगे वो हमें बताइए. क्या आप सुन रहे हैं हमें देहरादून से और मैं हूँ. I can use my brand name. That's okay. Yeah, that's okay. So this is how I start my show. और अब मेरे शो को स्टार्ट करने का तरीका कुछ डिफरेंट होने वाला है. 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 पर सुप्रभात, देवांगना आपके साथ. एक्चुअली देवांगना नहीं, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी फर्स्ट रनर अप देवांगना आपके साथ. थैंक यू. क्या फर्स्ट रनर अप मिसेस इंडिया ब्रेनी मैम आज ब्यूटी. अपने बारे में बताएं, आपका नाम और फर्स्ट रनर अप हुई जी. मिसेस जी. इंडिया ब्रेनी ब्यूटी में, तो आपको कैसा लग रहा है जीतने के बाद और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये बहुत ही एक शानदार जर्नी रहा है. मैं एक्चुअली ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ. वहाँ से मैं ये पैजेंट में भाग लेने के लिए आई हूँ. और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ से मेरी मुलाकात हुई, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, बहुत सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये इससे और खुशी हो रही है कि ये क्राउन के साथ भी मैं वापस टेक्सास जाऊँगी और वहाँ पे फ्लॉन्च करूँगी. मैम आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, कितने साल से आप वहाँ रह रही हैं? 30 साल से हूँ मैं टेक्सास में. आई एम अ तमिलियन but born and raised in New Delhi. Okay. And I'm actually a singer. Oh, very nice. You know, I'm a performer. Worked with Shankar ji, Hariharan ji, and I just love being on stage. Yeah, so this is what I do. Actually, I entertain a lot of people all the time. I'm a performer. So now your profile will be different. The singer come Singer, runner-up of yes, India Beauty. yes, and it's very Beauty. exciting. Yeah, It's yeah. very exciting. और मेरे को ये भी लगा जब मैंने भारत छोड़ा ना 30 साल के पहले, मेरे को लगा कि एक कोई तो मेरा सपना रहा जो अधूरा था, तो 30 साल आज वो पूरा हो गया. राइट हियर राइट दिस मिनट. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू. के बाद पहला इतना बड़ा इवेंट और इतने सारे लोग आए और बहुत अच्छे कंटेस्टेंट, और इस कॉन्सेप्ट के लिए सबने आपकी बहुत तारीफ़ की, जितने भी लोगों ने अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन दी है. तो कैसा फील कर रही हैं? अभी इवेंट कंप्लीट हो गया, विनर्स अनाउंस हो गए. इवेंट कंप्लीट होने का ऑफकोर्स बहुत रिलीफ लग रहा है. एंड इट वाज अ सुपर सक्सेसफुल इवेंट एंड थैंक्स टू ऑल माय मीडिया टीम, स्पेशली हिमांशु जी. और मेरे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, जूरी पैनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. मेरे फाइनलिस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे. एंड जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया. अगर जहाँ हार्ड वर्क है, इंसान कुछ भी कर सकता है. अगर उसके दिल में चाहत है ये अचीव करने का तो वो कर सकता है. और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी वही प्लेटफॉर्म है जहाँ एज, वेट, हाइट कोई चीज़ का बैरियर नहीं है. हम सारे केज को तोड़कर बाहर निकलते हैं और सारी चीज़ों को पॉसिबल करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. लेकिन ये आइडिया कैसे आया? बिकॉज देखिए आज आपने जितने भी विनर्स हैं वो कोई इंडिया अब्रॉड से भी आई, टेक्सास से जो जीत के जा रही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? तो मैं ऑलरेडी इतने एनजीओ से जुड़ी और मेरा खुद का भी एक एनजीओ है, फ्लोरियन फाउंडेशन. मैंने हमेशा हम बात करते वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन अपलिफ्टमेंट की, बट वो बातें करने से नहीं होता है. एंड एक रैम्प पे वाई डज अ प्लास्टिक मॉडल शुड वर्क लाइक 32, 34, 32 फिगर. वाई नॉट एनी वन कैन वॉक द रैम्प. लाइक जो एक घर पे खाना बनाते हो या ऑफिस में काम करते हो या वो स्टूडेंट हो, एनी वन कैन वॉक द रैम्प. क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट और हिडन पोटेंशियल होता है. उनके कलर पे या उनके बॉडी पे जज करके हम अगर कोई भी चीज़ का जजमेंट दे तो वो बहुत ही रॉन्ग है. करेक्ट. तो अभी आज जो विनर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विनर्स के लिए इतना ही,
I'm कहना चाहूँगी first of all congratulations to them, and I'm very happy that my winners are super talented, and I'm looking forward that with them we will come up with a very big project very soon. अभी जो जीत चुके हैं उनका अगला स्टेप इंटरनेशनल में आप लोग compete करने के लिए भेजने वाले हैं? Why not? If they are, they do want to pursue that, and if they want to go internationally, we would definitely support them to do. थैंक यू। और वैसे लोगों को आज वो अचीव किया लोगों ने, पेजेंट जो जीता है, तो आपके हिसाब से हाउ वाज इट एंड हाउ वाज द कंटेस्टेंट, कैसे थे? It is very important that pageants are inclusive. Correct. And what I love about Archana Jain and Rabia's initiative, Indian Brainy Beauty, is that उसमें कोई भेदभाव ही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या लगा, मैंने पेजेंट्स का ही देखे हैं, करेक्ट, तो उसमें क्लास नहीं होता, जहाँ पे एक तो डिसाइडर भी रॉन्ग हो जाता है। हाँ, एक तो क्लास नहीं होता है, ऊपर से वो लड़कियों को किसी कोई सिखाया ही नहीं होता, करेक्ट, और उसकी वजह से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता है। कॉन्टेस्टेंट कभी गलत नहीं होता, करेक्ट, गलत होता है जो उनको उस मंच पर खड़ा करता है इसके पहले कि वो प्रिपेयर हो। आज के कंटेस्टेंट्स had the energy, strength and perseverance. They were dressed up well because their clothes were right, their accessorization was correct, they had the energy, strength and intelligence to walk the ramp with confidence. Otherwise आप कितने भी 30 मार खानो, लेकिन जब आप स्टेज पे चढ़ते हो और आपको स्टेज पे you're not confident from here, it shows on the face. यहाँ पे the confidence levels were very high, the people had the energy, and the people who had mentored them and brought them on stage were achievers in their own right. That is what makes the difference. And secondly, matlab you rise beyond body shaming, I understand, but now you are rising beyond even levels of what people term as handicap, and you are giving people an equal opportunity to come up on stage and be themselves. मुझे पता नहीं है कि ऑडियंस को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हर एक कंटेस्टेंट की ज़िंदगी आज बदल गई है। अगले साल आपकी एंट्री होने वाली है एज अ कॉम्पिटिटर? मैं पहले ही विनर हूँ यार। ठीक है। जूरी में आ रहे हो। राबिया जी, सेकंड सीजन आज कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा लगा, जितने लोगों ने बहुत एंटरटेनमेंट पैंडेमिक में कंप्लीट किया अपने इवेंट, तो क्या कहना चाहेंगे? पैंडेमिक में वैसे भी लोग बहुत टाइम से बोर हो गए थे, दे वांटेड सम ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू, एंड सबका पैशन तो होता ही है, पर्पस होता है लाइफ में जीने का, तो पर्पस को अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करो, और पर्पस का मतलब होता है ब्रेन्स को यूज़ करो। खुदा ने ब्यूटी सबको दी है, ब्यूटी इसलिए दी है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही सेवा के लिए किया जाए, सही घर वालों की खिदमत के लिए किया जाए, समाज के लिए किया जाए। तो समाज में अगर हमारे एक ब्यूटी पैजेंट के थ्रू अगर ये देश में और अपने एरिया से लेके समाज से ग्लोबल लेके अगर कोई पर्पस को आगे बढ़ाता है और वो सेवा को बहुत बहुत दूर तक लेके जाता है, तो हमारा ये मकसद कामयाब हो जाता है। इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीज़न 2 इसीलिए कामयाब हो गया है। थैंक यू। आप इस इवेंट में आए और आपने जो फाइनल चूज़ किया, हमने सुना लोगों से कि उन्हीं लोगों को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना ये सेकंड सीज़न फिनिश किया, बहुत अच्छे से किया। और कोविड के टाइम पे थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है चीज़ों के साथ, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट आई एम रियली हैप्पी कि आई गेट टू जज अमेजिंग पीपल, और काफ़ी अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ से आए थे लोग, और उनको जज करना बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ओरिजिनल एंड ट्रू विनर्स वॉन दिस कॉम्पिटिशन। थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइए, आप आज सेकंड सीज़न में आए थे इंडिया ब्रेनी ब्यूटी के लिए, तो कैसा लगा आपको? और कंटेस्टेंट जिसमें एज ग्रुप नहीं है, कोई स्किन लिमिट नहीं है, ना हाइट की लिमिट थी, तो कैसा था इवेंट? मुझे बहुत ही अच्छा लगा इधर आके, क्योंकि ये एक यूनिक टाइप का पैजेंट शो है जिसमें साइज़ एज कुछ भी मायने नहीं रखता है, और इसमें ट्रू टैलेंट, ट्रू कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ावा देते हैं। एंड आई थैंक द इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्रेनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट टू हैव मी ओवर, सो थैंक यू वेरी मच जी। आज आप सेकंड सीज़न में आए थे इंडिया ब्रेनी ब्यूटी के लिए, तो आपको कैसा लगा इवेंट? पहली बात तो मैं ये बोलूँगी विच इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट हैज़ रियली दैट गुड थिंग विच अर्चना ब्रॉट हियर, और मुझे लगता है कि ये उम्मीद होनी चाहिए
उम्मीद एज इन होनी चाहिए, मतलब लोगों को रखनी चाहिए कि हो रहा है और ये होना चाहिए, बिकॉज एज पर वुमेन इन एनी फ्रेम, like biologically, non-biologically, any case of woman form reincarnation has to be, कि सबको इनको मौका मिलना चाहिए कि हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसके पीछे कि हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि हर एक इंसान की खुद की उम्मीद होती है. इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मैन एज वेल. तो मगर हमारे जैसे आपको पता है हमारे देश की जो चलते आए हैं सब चीज़ें, तो उस हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. मुझे लगता है हर गली, हर एक नुक्कड़ में, हर एक फील्ड में, हर इंडस्ट्री में ऐसी होनी चाहिए. और उन्होंने जो अर्चना ने ये जो इनिशिएटिव ले लिया, विच इज़ अमेजिंग, एंड इट हैज़ टू बी इन दैट गुड. थैंक यू. नैतिक जी, आपने ढोल के लिए जो फेमस है MTV की वजह से और आपके डांडिया की वजह से, लेकिन आज आपने सिर्फ म्यूज़िक अपने मुंह से प्ले करके लोगों को एंटरटेन भी किया और काफ़ी मोटिवेट किया. तो इस इवेंट में कैसा लगा? ये इवेंट बहुत ही अच्छा था. एक तो सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा था और वुमेन एम्पावरमेंट को और आगे लेके जा रहा है. और जैसे सब कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये एक अलग लेवल पे जाने वाला शो. और दूसरी जो आपने बात की कि आज मेरा ढोल नहीं था, मेरे बैंड मेंबर्स नहीं थे, मेरा बैंड नहीं था, तो मेरा मानना ऐसा कि म्यूज़िक के लिए कि कोई भी आवाज़ या कोई भी साउंड से अपन म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अपने पास इंस्ट्रूमेंट हो या अपना बैंड हो. तो वही चीज़ मैंने आज ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये सबको देख के मुझे भी एक जज्बा जाग गया, और ये चीज़ को एक कंटिन्यू करने का मौका मिला कि म्यूज़िक भी इनकी तरह ऊपर जाना चाहिए. और जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं भी अकेला सेल्फ इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट आज हुआ हूँ. तो थैंक यू वेरी मच, एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बीइंग हियर, because this is something which creates your own identity and gives a great attitude towards the society. Thank you for hosting such a beautiful and amazing event. ठीक है. आपका सच सिंपल. हाँ. सिंपल जी, you are already a skin partner with this event. Right. So what do you want to say about this event? कैसा लगा आपको? I think, as a dermatologist, I've always believed that beauty is important, जी. but content is also important. Correct. And of course, when you're translating this, it's beauty with a purpose, and that's what I like about this whole concept. Is it has beauty and it has a purpose, which is so unique. And I'm amazed with the way the whole event was organized, and it's great. And as I always say that you are beautiful the day you plan that or you want to be beautiful. So just be yourself, guys. And Archana and Rabia ji, fabulous event. Keep doing it and keep motivating, keep empowering women, and it's great. Thank you. Thank you. Thank you. पैंडेमिक के बाद एक अच्छा ब्यूटी पैजेंट हुआ जहाँ पे आपने बहुत कमाल की एंकरिंग की और बहुत जेन्युइन लोगों को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया जो डिज़र्व करते थे. इसमें एज ग्रुप कुछ भी लिमिटेशंस नहीं था. तो इस इवेंट के बारे में अर्चना जी और आबिया जी के लिए क्या कहना चाहिए? ओह माय गॉड, सच में कहना चाहूँगी एग्जैक्टली 1 साल हो गए कि हमारे इवेंट्स बंद थे, एंड दिस हैज़ बीन रियली द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ब्यूटी पेजेंट जो हुआ है. और जिस तरह से क्या, मैं ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी ऑफ कोर्स टू ऑल द विनर्स, बट मोर देन दैट टू द फाउंडर्स जिन्होंने ये लवली प्लेटफॉर्म दिया टू दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो भी सेंट रीजस में. Wow. So I was here for the Nykaa Femina Beauty Awards last year 2020 18th of February. और उसके बाद इतना खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म देना to all the girls जो पूरे इंडिया से नहीं वर्ल्ड से आए हैं. We also had a contestant from USA Texas. So I think ये जो phenomenal experience है, जो सीखने इन्हें मिला, जो 3 दिन की लगातार ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स थी, और आज जो ग्रैंड फिनाले था, मैं इनको बधाई इस बात की देना चाहूँगी कि इट वॉज कम्प्लीटली फ्लॉलेस. एंड हिमांशु, यू आर ऑलवेज supremely best with everything, and I think everything ना वो fit perfect हो जाता है ना, बोलते हैं वो it's all destined, बस वो आज destiny हो गई, and this has been truly remarkable. Thank you. Being a jury, आपने जो contestant जो select किए थे उसके हिसाब से जो यहाँ पे winners हुए हैं, तो how was your experience? कैसा लगा? The experience was really good. The contestants were a total surprise package. Yeah. Because we didn't realize that a person come flying down from UK. A mother of 2 also was there. A lady who was 50 plus was also there. So it was not a handicapped person was also there. So everybody was there, It was more about the brain. It was more not with the face, not with the skin. It was all about the brains. Thank you. आज कंप्लीट हो गया सेकंड सीजन इंडिया ब्रेनी ब्यूटी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही अच्छा था. It was wonderful. The afternoon, the evening and the night is yet to flow, and it's flowing. And India Brainy Beauty, it's a great concept. And Archana Jain, the young entrepreneur, has done it very well. Rabia Patel, Simran Ahuja, they anchored it very, very well. It was fun, entertaining, enlightening, and of course, beautiful. थैंक यू. मैम अपना नाम बताएं एज अ डिज़ाइनर एंड हाउ यू लाइक द कंटेस्टेंट एंड अर्चना जी के साथ एसोसिएशन कैसा है? आई एम हीना वाफना और मेरे ब्रांड का नाम है लेबल हीना वाफना. और द फाइनल क्राउनिंग के टाइम जो आउटफिट्स पहने थे दैट इज़ माई नाम. वेरी नाइस. सो आई एम सो प्लेजर एंड ग्लैड टू बी द एसोसिएट विद अर्चना. शी इज़ सुपर. और मुझे ये अपॉर्चुनिटी अर्चना ने कॉन्फिडेंटली मेरे को दिया बिकॉज शी नोज़ माई वर्क ऑल्सो. शी टोल्ड मी कि आपका काम बेस्ट है तो मैं ये क्राउनिंग का आउटफिट आपको ही दूँगी और किसी को नहीं. ट्रस्ट मी अर्चना. सो थैंक यू सो मच टू बिलीविंग ऑन मी और माई वर्क ऑल्सो. बीइंग अ वुमेन और आज जो लोगों ने जीता है और नो एज ग्रुप नथिंग और पैंडेमिक के बाद इतना बड़ा इवेंट होना, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और आपके हिसाब से जो विनर्स हुए हैं तो आपके हिसाब से दे वर परफेक्ट टू बी द विनर्स? सी ऑल वुमेन्स आर सब फीमेल्स भी ना मतलब दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू लड़की फीमेल्स को अपनी एक ब्यूटी टैलेंट ये दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें ना एज बार देखा जाता ना ब्यूटी देखा. इट्स अबाउट द टैलेंट. ब्यूटीफुल तो सब फीमेल्स होती है एवरीबडी इज बट इनर ब्यूटी इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट. सो ये दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू गिव द राइट वे फीमेल को एक इनर ब्यूटी को ग्रोथ करनी. एंड आई एम वेरी मच प्लेजर कि अर्चना ने ये कॉन्सेप्ट निकाला. इसके थ्रू फीमेल्स को पता चला कि केवल सुंदर होना, ब्यूटीफुल होना, गोरी स्किन होना दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. सो इट्स वेरी गुड. थैंक यू.